ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਮਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਇਮਲੀ ਤੇ ਇਹ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਰਾਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਐਵੇਂ ਭਿਗੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭਿਗਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਥ ਲੈਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛੰਨੀ ਨਾਲ ਛਾਨ ਕੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੰਨੀ ਨਾਲ ਛਾਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਕੜੂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हम तो बहुत ही जगह गए थे, लेकिन तो जितना जिम्मेदारी और रिस्पॉन्स यहाँ के स्टाफ को मतलब के पेशेंट के प्रति है उतना हम जो कहीं नहीं देखे। एक चम्मच सेब का सिरका, ठीक है, प्लस फिर 1 चम्मच नींबू का रस। आ देखो पूरा 1 चम्मच पूरा नींबू का रस प्लस आधा चम्मच शहद। आ तीनों ਨੂੰ मिक्स कर लेना है। तीनों ਨੂੰ मिक्स करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਗਭਗ ਹਲਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਗਭਗ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਮਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਰਜੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਡਨੀ ਰੀਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਚਾਰਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੌਥੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫੈਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਲੀਵਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਦਾ, ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਮਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਇਮਲੀ ਤੇ ਇਹ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਰਾਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਐਵੇਂ ਭਿਗੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭਿਗਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਥ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛੰਨੀ ਨਾਲ ਛਾਨ ਕੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੰਨੀ ਨਾਲ ਛਾਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਕੜੂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲੋਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अब कहाँ से आए? हाँ हाँ, हम बिहार स्टेट से आए हैं। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह हुआ। प्रॉब्लम क्या थी? मेरा था बीपी और डायबिटीज़ की वजह से थोड़ा बहुत किडनी इफेक्टिंग हो गया था। तो यहाँ कितना समय हो गया? यहाँ आज मेरा बस 7वां दिन है जी। प्रॉब्लम अब कैसी लगी? प्रॉब्लम में सुधार है, इम्प्रूवमेंट है इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक लगा यहाँ? हाँ अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा है। अच्छा जी का भी बहुत हम लोग को सहयोग मिला है, अपना सहानुभूति मिला है और विल पावर, एगो आत्मविश्वास का वो तो बहुत बड़ा। आपको किडनी खराब बताया था ना? नहीं किडनी किडनी का आपको क्रिएटिनिन कितना बताया था? मेरा बताया था 4.3। 4.3। हाँ, और यहाँ कितने दिन हुए, कितना हो गया आपका? यहाँ आज मेरा 7वां दिन है। तो
और कब चेक कराया आपने? अभी मेरा 3.3 है, कल ही में जांच हम करवाए थे, परसों ही जांच करवाए थे। मतलब 5 दिन हाँ। में 4.3 से 3.3 आ हाँ, गया। 1.3 कभी ऐसा 5 दिन में कभी ऐसे आया? नहीं, आज तक जो है मेरा जो बढ़ते ही गया था, इंक्रीमेंट के ही रूप में था। आपको आचार्य जी के बारे में किसने बताया, कैसे तो हम लोग लैब से भी देखे और संपर्क किए, और उसके बाद बिहार से भी बहुत पेशेंट जो यहाँ से गए उनसे भी हम लोग का संपर्क है, क्योंकि हम पुलिस डिपार्टमेंट में अफसर हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो अपने फीडबैकिंग लिए, और जैसे पुलिस वाले पहले जांच करते हैं। हाँ वो इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि वही तो, मतलब कि ऐसा भी था पेशेंट जिसका कि 12 था, 13 था, मेरे ही एरिया के थे, हमारे ऑफिस में आते थे, तो उनसे थोड़ा सा हो जाता था संपर्क, तो हम उसको तो वो हमको शेयर किया कि सर एक बार आप हिम्स में चले जाइए। तो हम एकदम मतलब कि अपने एसपी साहब से रिक्वेस्ट करके हम आए, 10 के दिन की छुट्टी लेकर के आए। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं जी, आप क्या कहना चाहोगे? जितने भी किडनी फेल के पेशेंट हैं, लीवर फेल के पेशेंट हैं, क्या बोलना चाहोगे? उसके लिए मैं यही भी कहूँगा कि ये हिम्स हॉस्पिटल बहुत अच्छा स्कोपिंग है उसके लिए, और तो यहाँ का जो स्टाफ लोग का भी जो रिस्पांस है, जो जिम्मेदारी है, वो बहुत 110% है। मतलब कि तो हम तो बहुत ही जगह गए थे, लेकिन तो जितना जिम्मेदारी और रिस्पांस यहाँ के स्टाफ को मतलब के पेशेंट के प्रति है, उतना हम जो कहीं नहीं देखे हैं। और तो वो ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। मिला रहा हूँ और है भी पुलिस वाले। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਤੇ ਇਮਲੀ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, 1 ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ 1 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ 1 ਚਮਚ ਪੂਰਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਪਲੱਸ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ, ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਗਭਗ ਹਲਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਗਭਗ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਮਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਰਜੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਡਨੀ ਰੀਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਫੈਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਲਦੀ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਆਂਵਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਸਿਰਕੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਆਪੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟਿਨਾਈਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਯੂਰੀਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਡਨੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਲਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮੈਂ PHAR ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, FARM ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, FARM ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋर्ट ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ये रिपोर्ट देखो, आप लोग ध्यान से देखो। ये इनकी 14 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट है। सुब्रा पाल है 59 ईयर्स। इनका शुगर का जो HbA1c है 7.5 था, और जो इनका RA फैक्टर था जिसमें इनको गठिया बताया गया था 47.6 था 14 अप्रैल 2023 को, ठीक है। और ये मैडम साथ बैठी है, इनका इंटरव्यू भी ले लेते हैं। और फिर जो HbA1c 7.5 था वो 6.4 आ गया 4 जून को, और जो 47.6 था RA फैक्टर वो 17.8, यानी कि ऑलमोस्ट इनका गठिया भी नॉर्मल रेंज में आ गया। जो RA फैक्टर इनका पॉजिटिव था, यानी कि जिस गठिया को
मॉडर्न पैथी में लाइलाज बोला जाता है। वैसे तो वो हर चीज़ ही लाइलाज है, उनके पास किडनी भी लाइलाज है, लीवर भी लाइलाज है, हार्ट में भी वो स्टंट डालते हैं, उनके पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन गठिया को तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं और बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं चाहूँगा मैडम से भी पूछते हैं। मैडम आप बताओ कि क्या तकलीफ थी, क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी? কি ছিল? আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি। আমার হুগলি জেলা সিঙ্গুর থেকে এসেছি। আমার নাম শুভ্রা পাল। আমি এখানে এসেছিলাম এপ্রিল মাসের 14 তারিখে এই 2023 সালের। তখন আমার ये बंगाली में बताएंगे। बंगाली बोल रहे हैं, मैं language आपको उधर नहीं बोल बंगाली रहे, में हाँ। जाने दो, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा क्योंकि अब ट्रांसलेशन patient भी के साथ बहुत रह रहे जरूरी कि हम है। सीख गए हूँ। अच्छा सिख गए ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ? আমার প্রথমে ওই বিপি হাই বিপি একটু ছিল আর সুগার ছিল আর আর্থারাইটিস ছিল। अब सुनो, খুব पहले रुको। সমস্যা ছিল। बीपी भी था, शुगर भी थी और गठिया भी था, और 59 इनकी एज है जो इन्होंने बोला अभी तक। आगे बताओ। তা এখন আমি এসেছি, এসে টেস্ট করেছি, আমার বিপি সুগার সব ঠিক আছে, নর্মাল হয়ে গেছে এবং ওই আর্থারাইটিসটা খুব একদম নর্মাল হয়ে গেছে। हाँ जी, अब इनका बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है और गठिया की रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है, और उनकी बॉडी में भी जो दर्दें थी, तकलीफें थी, वो भी नॉर्मल है। ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ? हाँ हाँ, समझ लेंगे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? মালুম নেই। ও আমার বড় ছেলে পড়াশোনা করে জানতে পেরেছে এখানকার কথা। আমার বড় ছেলেই এখানে প্রথম নিয়ে আসে, আমার বড় ছেলে। इनके बड़े बेटे ने बताया था इनको यहाँ के बारे में। तो आप बिल्कुल खुश हो? तो आप बंगाल के लोगों को क्या कहना चाहते हो? আপনারা সবাই আসুন এখানে, এখানকার পরিষেবা খুব ভালো এবং এখানে এসে আপনারা সবাই সুস্থ হয়ে যান। প্রত্যেক, আমি শুধু বাংলার নয় সারা পৃথিবীর লোককে জানাতে চাই। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ मैं ਵੀ तो ਇੱਥੇ इसलिए- ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ लोग बंगाल से हैं वो बिहार से है। अभी मैं और भी पेशेंट बताता हूँ। ये रिपोर्ट डॉक्टर साहब ये स्कैन कर लो। तो ये जितने भी पेशेंट हैं ना, वो देश के अलग अलग कोनों से हैं। अभी 7, 8, 9 तारीख को इसी जुलाई के पहले महीने में पूरे वर्ल्ड से वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, पूरे वर्ल्ड के लगभग कंट्रीज़ 9 कंट्रीज़ के 100 लोग आ रहे हैं। हमारे ऐसे ही एक हिम्स है हमारा मेरठ में, दिल्ली NCR बॉर्डर पे बोलते हैं, तो वहाँ आ रहे हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन वहीं रहेंगे। हमारा एक 72 घंटे का रिवर्सल कैंप होता है। इस जून में भी है वो 16, 17, 18 को। हम हर महीने वो कैंप लगाते हैं। सिर्फ 3 दिन के लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, और पेशेंट खुद ही अपने आप को स्वस्थ करना सीख जाते हैं। मैं चाहूँगा और पेशेंट भी हमारे पास, आप इनसे भी पूछिए क्या उम्र थी, कहाँ तकलीफ थी, कहाँ से आप आए हो? ਤੁਸੀਂ आपका नाम क्या है? नाम मेरा श्री कृष्ण है ये। तो कहाँ से आए हो? हरियाणा से रोहतक से। हरियाणा से रोहतक से। अच्छा हरियाणा से। हाँ। आपको बीमारी क्या थी? कैंसर था ये। कैंसर था? हाँ। कैसा अभी कैसा है? डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर मैंने 1.5 साल पहले हो गया था ये। मैंने कई जगह देखा, मेडिकल में भी देखा, PGI में, प्राइवेट में भी देखा, काइनोस में। उन्हें शेक लगाई, कीमो चढ़ाई, कुछ थोड़ा बहुत आराम हो गया, फिर हो गया। फिर पता चला कि आपके पास यहाँ पक्का इलाज है। मैं भाई चलो वहाँ चलते हमारे हैं। पास यहाँ कितने दिन से आए हो? 1 हफ्ते से। एक हफ्ते में अपने आप को क्या फ़र्क लग रहा है? 1 हफ्ते से पहले तो रोटी भी खानी बंद हो गई थी, कुछ भी नहीं खाया जाता। फ्रूट ले लो थोड़ा बहुत, और जूस भी पी लो हूँ, और गोली पहले 4 दिया था, अब 2 ले हूँ। मेडिसिन भी कट गई। हाँ मेडिसिन भी करी। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, रोहतक से। रोहतक से। पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं आपका दफ्तर भी है रोहतक है, हाँ, रोहतक भी दफ्तर है। उन्होंने भेजा था। हाँ। तो अभी बाकी देश वालों को क्या सुना? मैं तो सभी को यही कहूँगा कि आप यहाँ आओ और अपना इलाज करवाओ। धन्यवाद, थैंक यू। देखा जाए तो पूरे देश तो कोने आए ने। ਤੁਹਾਡਾ इंस्टीट्यूट होर किथे किथे आ? हमारा एक तो ये है जहाँ पे हम डेरा बस्सी में खड़े हैं, हिम्स। मैं चाहूँगा पीछे पूरा कैमरे में दिखा भी देना हिम्स के बारे में ऊपर करके। और इधर जो ये पेशेंट्स ही हैं सब रियल पेशेंट्स हैं। और ऐसे ही हमारा एक मेरठ में है 350 बेड का, ये फ़ोटो भी दिखा देते हैं अपने पीछे मेरठ वाले की, वो है मेरठ वाला। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा 1000 बेड का है, अभी 350 बेड स्टार्ट हो गया। ये लखनऊ में है 100 बेड का। ऐसे वो उधर मुंबई वाले की फ़ोटो लगी हुई है, वो 150 बेड का है। तो पूरे भारत में 4 बड़े हिम्स हैं, और छोटे छोटे तो हमारे लगभग 14 हैं। तो बड़े हमारे 4 हैं, बाकी छोटे 14 हैं, और 100 से ऊपर हमारी क्लिनिक्स हैं। एक ही मकसद है, लोग स्वस्थ हो जाएँ, घरेलू चीज़ों को अपना के, खाने पीने का ध्यान रख के अपना इलाज खुद करें। और हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट में
ये पंचकर्मा पृष्ठवस्ती बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी के सभी रोग इस तरीके से ठीक करते हैं, पंचकर्मा की टेक्निक से है। ये पृष्ठ ग्रीवावस्थी गर्दन का दर्द हो, सर्वाइकल के लिए होता है। जानुवस्थी घुटने दर्द हो, डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन बताया हो, इस टेक्निक से ठीक हो जाते हैं। कटिवस्थी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया हो तो इससे ठीक हो जाता है। ऐसे शिरोधारा में क्या होता है, सिर के ऊपर एक उचित मात्रा में तेल को टपकाते हैं तो मानसिक रोग, दिमागी रोग, डिप्रेशन, एनेक्साइटी, सीजोफ्रेनिया, मेनिया, वो सब इससे सेट होते हैं। और नीचे सबसे नीचे देखोगे आप नेत्र तर्पण, अगर किसी को आँखों की रोशनी में कमी है, आँखों का कोई रोग है, आँखें ख़राब हो गई हैं, ग्लूकोमा हो गया, कैटरेक्ट, तो उससे ठीक हो जाता है। मैं और चाहूँगा, और भी पेशेंट है हमारे पास, अगर आप मिलना चाहो तो हमारे पास एक पेशेंट और हैं, इनसे भी आप मिलेंगे जी। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? सुनील कुमार, कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। हरियाणा से। आपको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तो मेरे को 20 दिन पहले मैंने खुद ही पता चल गया था। डॉक्टर है मेरे, बढ़िया डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हैं ना, जो लूट खसोट नहीं करते, उनने मेरे को बता दिया था भाई गांठ है, खाली एक्सरे से। तो वो दवाई दी उन्होंने 6 दिन की, फिर उन्होंने लेट नहीं किया, दोबारा दवाई दी तो वो गांठ काली हुई। फिर मैं बोला जी एक्सरा, नहीं बोला नहीं लेऊँगा अभी, 5 दिन की और ले। उन्होंने 5 दिन की दवाई और दी, वो गांठ फिर सफ़ेद हो गई। ने बोला तो सीटी स्कैन करवा। सीटी स्कैन करवाया, वही भिवानी में नीलकंठ, अच्छी मशीन वगैरह है उसके पास। तो उनने दिया, वो भाई भी था 2 दिन लॉयर है, तो वो आए हुए थे गुड़गामा से, तो वो आगे, तो उन्होंने बोला जी इनका पेट करवाओ, रोहतक में करवाया वो। तो उन्होंने पेट तो कर दिया, वो पेट का तो मैं समझ गया सिस्टम। जब उन्होंने वो दवाई चढ़ाई ना, तो मैं ये तो पेट तो हो लिया, ये भी ये बात छड़ेगी। तो फिर उन्होंने वो अपने, उनके भी दोस्त थे मेडिकल में डॉक्टर, तो उन्होंने कहा, वो डॉक्टर समझदार था, बोला जी हम तो देसी इलाज लेंगे। बोला जी आप ले सकते हो, लेकिन उनका मन नहीं था भाई देसी इलाज ये ले। मैं बोला भाई मरना तो है ही, क्यों फुकवा हो के, पता पहले लीवर ख़राब था उसमें, ये उठे ना उठे, खराब मिट्टी हो जाएगी। तू जहाँ आपने सर्च किया ना, हमारे गांव की एक बहू आती है यहाँ, उसकी किडनी फेल हो गई थी, वो मोटी भाषा हमारी बड़े भाषा में वो लगा दी थी उस पर सेवा पानी पे, भाई इसकी सेवा करो ये जाएगी। वो मेरा छोटा भाई का दोस्त है, वो लेके आया था, मेरे परिवार में वो यहाँ आई थी, तो उसकी किडनी काम करना शुरू कर दिया। ये वो कब आई थी, वो अभी आई थी ना, वो दवाई लेगी 15 दिन की दवाई लेगी, और वो अपने घर पे जो इन आचार्य जी ने बताया, जो हॉस्पिटल वालों ने बताया, वो काम वो कर रही है। तो गुड फील करे, 3-4 किलोमीटर तो घूम लेती है वो, ना तो खाट पे वो होगी थी वो। आपको फिर मेरे को पता था, पता तो मेरे को चल गया। फिर डॉक्टर जैसे भाई को अंदर बुलाते थे, बोला भैया बाहर चलो। मैं बाहर क्यों चलूँ, कैंसर तो मेरे भाई के थोड़ी है, मेरे को पता है सब। तो फिर भाई ने बोला भाई, उन्होंने रिसर्च किया पूरा, फैमिली पढ़ी लिखी है सारी। फिर उन्होंने भाई देसी इलाज किया, मैं भाई देसी करवा दे, मेरा देसी इलाज ठीक है। हैं एक तो गिरोह के चक्कर तो बच जाए, फूक फाक की गिर दें खाट पे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने घरवाली को भी नहीं बताई। उठने में जैसे पिताजी भी आवाज़ लगाते थे तो बड़ी हरकत आती थी, उठा नहीं जाता था। भूख भी सोच के खाने लग गया था मैं, भाई क्या टेस्ट बनाऊँ आज। मैं इनको बोलता था सब्जी बना देती थी सब, माँ दूध में 2 रोटी घेर दे, वो मैं खाता। फिर मेरे जैसे कि बेटा बॉडी ख़राब हो ली। ये भी यहाँ आया मैं, 6ठा दिन है, 5वां दिन है। परसों जो इन दस्त की जो दवाई दी ना, थेरेपी वगैरह तो मेरी फर्स्ट टाइम से ही शुरू हो गई थी। वैसे मेरे को उस दिन गुस्सा भी आया, खाना पीना नहीं दिया। मगर यो कैसा हॉस्पिटल, तो भूखा भी मारेंगे, मेरे को नहीं पता था जी उस बारे में। दूसरे दिन जब मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ सुबह, बहुत अच्छा। ये भी मैं इस आगे तो थोड़ी बहुत बोल दूँ सेवा पानी के लिए, बाकी न मेरे घुटनों में दर्द है, अंदर से जो ना स्ट्रॉन्गनेस आई है, और अच्छी भूख लग रही है ज़बरदस्त, और बढ़िया नींद आ रही है। मेरे को ये भी नहीं पता मेरे बाएं फेफड़े में दाएं फेफड़े में, मेरे को नहीं पता वो है कि नहीं है, वो ये बताए, वो रिपोर्ट बताए। मैंने आज तक ये नहीं पूछी भाई कौन से फेफड़े में है, ठीक लग रही है। मैं तो ये कहता हूँ कैंसर है ही नहीं। जहाँ तक आज तक का सवाल है भाई, कल का तो किसी को पता नहीं।
ये इच्छा शक्ति ही, ये पॉजिटिविटी इंसान को ठीक करती है। जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है ना, तो सृष्टि की सारी ताकतें हमें ठीक करने में लग जाती हैं। जब हम मन से हार जाते हैं तो हम डिट्रॉयड होने शुरू हो जाते हैं। मैं इन सबको भी बताता हूँ, आपको बताता हूँ। आप सब लोगों ने सुना है, मैं पहले बता चुका, ब्रह्मा विष्णु महेश बताया था मैंने कि जनरेटर ऑपरेटर डिमाइजर, हम 3 भगवान की बात करते हैं। 3 मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा मतलब पैदा करने वाला, विष्णु चलाने वाला और शिव ख़त्म करने वाला। हमारी बॉडी के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रोल प्ले करते हैं। अगर तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं, तो हमें वो ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, मेंटेन करते हैं, विष्णु की तरफ चलते हैं। लेकिन हम नेगेटिव सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, अपसेट हो जाते हैं, दिमागी रूप से परेशान हो जाते हैं, वही शिव के रोल में हमें ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। मतलब वही बैक्टीरिया हमें पालते हैं, वही बैक्टीरिया हमें बड़ा करते हैं, वही बैक्टीरिया हमें डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब वो एक ही बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम बोलते हैं, तीनों रोल प्ले करता है। तो जैसी सोच, जैसे इन्होंने अब सोच दिखाई ना ये वाली, तो ये वाली सोच चाहिए होती है हमें। आज तक मैंने ये नहीं पता कौन से फेफड़े में है। मैं आपको सब सिखा दूंगा कि कोई से मर्जी फेफड़े में वो अपने आप निकल जाएगा। कल मेरी सिस्टर आई थी, एयरफोर्स में है, जीजा जी मेरे ऑफिसर है, और वो आई थी तो वो घबरा रही थी। तो मेरा हाल देख के बोली भाई तू तो 10 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी आदत खुश रहने की है, हंसी खुशी। ठीक हो बिल्कुल। मैं ठीक हूँ, होके जाऊँगा, इस सारा खेल ये कॉन्फिडेंस है मेरे को। और एक इनका स्टाफ जो है ना, मैंने ऐसा स्टाफ कहीं देखा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। मेरा लीवर ख़राब हो गया था एक बार, मेरे साथ वहाँ भी धोखा हुआ 2 हॉस्पिटलों में। मेरा लीवर ख़राब नहीं था, मैं ड्रिंक करता था, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम लीवर में आ जाती है। तो मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में गया, वहाँ जाते उन्होंने इलाज चालू किया इमरजेंसी में। इस टाइम लेके गया था भाई। तो मैं सुनता था उनकी बात। तो एक दिन मैं ऐसे आईसीयू में था, मैं सो नहीं रहा था, डॉक्टर ने कहने लगी भाई लीवर तो इसका ठीक है, मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं है। डैमेज तो हॉस्पिटल भी अच्छा है, वो जिंदल हॉस्पिटल है, वो ज़्यादा मतलब कमाई नहीं करते, वो बिजनेसमैन आदमी। फिर मेरे को किसी ने ट्रांसफ़र कर दिया एक डॉक्टर को, उसका नाम नहीं लेऊंगा मैं। आज तक वहाँ से हमारे गांव की तो तकरीबन डेड बॉडी ही आई। वो मेरे को 1 साल तक दवाई देता रहा। 6,000 रुपये का बिल, सुबह 5 बजे जाना, कभी गाड़ी में, कभी चलो गाड़ी, कभी घर पे ना हो तो ट्रेन में। इतनी मोटी फाइल होगी, आई सुप्रीम कोर्ट जैसी। एक कहानी सुनो आप डॉक्टरों की, 2 डॉक्टरों के अंदर विरोधाभास। एक दिन मैं पहुंच गया 6 बजे वहाँ पे, सिर्फ एक पोछा लगाने वाली और एक पर्ची काटने वाला। 400 रुपये उसकी फ़ीस थी, मैंने पे कर दी, उन्हें दे दिया। मैं कहा जी किस टाइम नंबर आ जाएगा? बोला जी आपका नंबर आएगा शाम को। मैं बोला अभी को 16 फिल्म लगी है यार, सबसे पहले तो मैं आया हूँ, तो नंबर तो मेरा होना चाहिए। बोला यार नहीं, नंबर शाम को आएगा। वो थोड़ी ही अपने को दिखाते हैं भाई शाम को नंबर आएगा, 10 बजे छोड़ना 8 बजे। मैं बोला भाई मेरे 400 रुपये वापस दे दे, ठीक है, ये तेरी पर्ची। तो उसने दे दिए। मैं थोड़ा झगड़ालू किस्म का भी हूँ भाई, इन बातों पर तो गुस्सा आएगा। जब पहला आदमी मैं आया हूँ, कोई सीरियस मरीज हो वो आ गया तो भाई चलो इसको देखो। तो उन्होंने पैसे दे दिए, मैं बाहर निकल गया। मैंने सोचा यार क्या करेगा, भाई का फ़ोन आएगा 10 बजे। बोले भाई क्या रहा? मैंने ऑटो किया, मैं गया, ये हॉस्पिटल है एक बड़ा है आधार में। तो मैंने वहाँ जाके पट्टी का देखा कौन डॉक्टर किसका कौन ना। वहाँ डॉक्टर अभिमन्यु नेहरा रोहतक से बिलोंग करते थे, लीवर स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैंने वहाँ पर्ची कटवा ली उनकी। वहाँ डॉक्टर साहब बैठे, बोला जी बैठेंगे। दूसरे नंबर था मेरा पर्ची का, तो बेसमेंट में बैठे हो। तो मैं गया तो दूसरे नंबर पर उन्होंने बुला लिया। गया तो उन्होंने देखा मेरी तरफ, वहाँ से बैठे, अभी क्या प्रॉब्लम है? माझी प्रॉब्लम तो ये थी, ये फाइल है। वो हर चैप्टर को उथला मेरी तरफ देखा है, एक पन्ना उथला मेरी तरफ देखा है, फिर मेरी तरफ देखा है। तो उसने सारी फाइल बहुत बढ़िया स्टडी करके उन्होंने बोला भाई जेब में कितने पैसे हैं? डॉक्टर साहब अस्पताल में तो पैसे लेके आना पड़ता है, चलो एक मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ अंदर वो डाल के, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। मैं कहा जी हैं पैसे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इंटरकॉम से बात करी, बोला एक पेशेंट भेजा उसका, तो वो करके भेज।
तो उसने 700 रुपये लिए बेचारे ने इंडोस्कोपी के। वैसे तो 2500 2200 1700 वहाँ लेते हैं, चलो वो भी कोई बात नहीं। फिर मैं जब नीचे आया तो उसने देख के कहने लग गया, भाई कब से ले रहा दवाई? माँ जी आपके सामने ये पेपर, जो अभी दारू छोड़ने की दवाई दे रहा था वो आपने छोड़ रखी है, आपके तो लीवर में प्रॉब्लम है ही नहीं। उसने सबको काटा मार के नो नीड मेडिसिन लिख दिया, आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। और आप 1 साल से खा रहे थे? 1 साल से खा रहा था, 7,000 रुपये महीना, और पहले दिन फ़ोन आ जाए भाई कल आपने आना है। मैं भाई ठीक है। मैं बोला भाई मैं तो फिर भाई ने क्या जवाब दूँगा, यार मैं MBBS डॉक्टर हूँ यार लीवर का, मैं आपको मार के क्या लूँगा? मैंने आपसे क्या लिया? मैं लाखों रुपये तनख्वाह है मेरी यहाँ, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं। मैं खुश हो गया, मेरा रंग काला, बिल्कुल काला कर दिया उसने दवाई दे के। 1 साल दवाई खाई। हाँ, मैं सीधा भाज के, अच्छे डॉक्टर भी हैं अच्छे भी हैं, और बुरे भी हैं, दोनों तरह की। बुरे बुला के रखते हैं, उलझा के रखते हैं। अच्छे जो है ना जवाब दे देते हैं, मरना है तो मरना है भाई तेरे ये बीमारी, वो अच्छे बहुत हैं और निर्भाग भी बहुत हैं। मैं भाग के होटल पे गया, वहाँ सबसे पहले आज परहेज तोड़े, बोले खाना नहीं, बोला मानस छोड़ की कम खा ले। देखो कितनी बड़ी उसकी बात थी। मैंने छक के रोटी खाई, दाल। कई दिन से परेशान थे वो आप। परेशान तो उन्हें कर रखा था, ये परहेज पतासा गुजरी जो पहले आती थी ना, खील पतासा गुजरी, उस रसगुल्ले आ गए, रोटी खवा दी उस आदमी ने मेरे को बगैर नमक के। हिम्मत है आपकी, ठीक है। फिर मैं आके फिर लड़की की शादी करी, फिर पैग मार दिए, मैं कहा फ्री हो गए। चलो धन्यवाद। डॉक्टर साहब अभी जो है ना ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, यहाँ से आपको और पक्का करके भेजेंगे। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 90% ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੀਜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਇਹ 3 ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਲੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੈਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਵਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕਰਮਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵੇਸ਼ਾਨਾਮ रोगाणाम निदानम कुपितामला, मतलब सर्व रोग अगर कुपित मल को निकाल दोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। ऐसी एक श्लोक है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध कर लो, 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो, मतलब स्वस्थ जियो सुखी जियो। यही साडा एक मैसेज है हिम्स का साड़ी तरफों। एक मैं होर गल कहना चाहांगा, जिन्ने भी लोग ने हैल्थ इंश्योरेंस जरूर कराया करो। जदों हैल्थ इंश्योरेंस कराओ, आयुष कवर वाला करवाओ, वो दोनों जगह चलता है, एलोपैथी 'ਚ चलता है, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਆਰੋਗਯ ਸੰਜੀਵਨੀ। ਆਰੋਗਯ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਖੂ।